इतनी मशहूर वो हुई हैं जिन्होंने भारत को गौरव दिलाया है ओलंपिक्स में। क्या आपको अगर मौका दिया जाए, गिवन अ चॉइस, यू वुड लाइक टू डू अ बायोपिक ऑन साक्षी मलिक लाइफ? ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। अब तो साक्षी ने भी बोल दिया कि आप बड़े पावरफुल हो, आप स्टांस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। स्टांस भी अच्छा कर लेती हूँ, देखो तो ऑलरेडी आज थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होगी, तो अगर साक्षी पे मूवी बने तो मैं जरूर प्ले करना चाहूंगी उसका कैरेक्टर। Have to say that the only reason I'm here was because of this campaign. When they approached me to do the event, and I said, oh my god, you know what, they have this new campaign that came out and that I just saw on TV, Like a Girl, and I would definitely want to be a part of this because it's such a great thing to give young girls, impressionable girls, that kind of confidence. Lose their confidence at puberty because society keeps telling them that you can't do this, this is not how you should be, this is not what you should do. I think we just need to stop doing that. And I feel truly fortunate because my parents I have two brothers and they raised me no different than them, and I honestly thank them so much from the bottom of my heart that I'm able to do what I want to do, to make the choices that I want to take and do them all proudly like a girl. Yeah, that's true. This is an amazing video. I know that it was very short, but you guys can check out the longer video if you want. It's on YouTube. It's on Whispers official page. Please do go and check it out. Share it because it has an amazing message and it will definitely resonate with every woman, every girl, every child, everybody that you know. It will definitely send that message across. Also to all the men, क्योंकि जब आप ये देखते हो तभी आपको समझ आता है कि oh my goodness, that's right, हमें पता भी नहीं था. We didn't even realize that this is actually the message we're sending out without having realized what it is. So now, on this occasion, I would request Sonakshi and Sakshi to showcase pride. Sakshi, जैसे कि आपने पढ़ा भी सर्वे पर लिखा है कि 6 में से 10 लड़कियों स्पोर्ट्स खेलना बंद कर देती हैं जब वो प्यूबर्टी पर पहुंच जाती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि वो ऐसा क्यों करती हैं, नहीं करना चाहिए? वो करती हैं इसलिए क्योंकि सोसाइटी बहुत टॉन्ट करती है, वरना मेरे साथ भी हुआ था लेकिन मैंने उनका नहीं सुना और कंटिन्यू किया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप करना चाहते हो खुल के करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी दुनिया कुछ भी बोलती है, डोंट केयर। Awesome. And be proud to do it like a girl, you guys. Yeah. Okay. I thought I had to ask you a question also. Oh yeah. Sonakshi, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जो लोगों ने आपको बोला था कि you can't do this because you're a girl? ऐसा कुछ? I'm sure that in the industry, before the industry, sometime in your life, because people love expressing their opinions, ना, telling you what you can't do more than what you can do. Honestly, अगर बोला भी होगा तो मैं ऐसी ढीठ हूँ कि मैंने सुना नहीं होगा. And which is why I'm here where I am today. And like I said before कि मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि मेरे parents ने मुझे हमेशा support किया. उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं करने दिया कि मैं अपने भाइयों से कम हूँ और ऐसी कोई भी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती हूँ. So I feel it's very important. I'm sure even Sakshi's family has supported her immensely, which is why she is where she is today, and she's been able to, bring back the medal from the Olympics. So I feel एक very strong support system का होना भी ज़रूरी है. And honestly, not only families, friends, relatives, anybody who's around you in that circle, supportive होना बहुत ज़रूरी है. Especially जब लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं, when they reach that age कि वो आपकी बातें सुनना शुरू कर देती है, उन्हें अंडरस्टैंड करने लगती है. I feel it's very important to show support at that very age, जो कि a lot of us still today, ये statistics के मुताबिक we don't have. So I feel it's very important to be supportive, whoever you are, to young girls, impressionable girls, and make sure that they go ahead in life with whatever it is that they want to do. लड़ा रहे थे. बहुत पावर है इनमें, सीरियसली. So sweet. All right. जी, साक्षी जी, आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि आज तक जो आप लोगों ने अचीवमेंट की है, आप उसको किस नज़र से, किस लेवल में देखती हैं? क्या आप एक दूसरे से कम हैं या बढ़ के हैं? ऐसा आप दोनों बताइए. सर, हमें एक दूसरे से कम या ज़्यादा होना क्यों
है। हम वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है, मैं अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हूँ। एंड यही तो बात हम कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करने से ज़्यादा अगर आप हमें बढ़ावा दें, हमें अगर इनकरेज करें कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और आगे और भी अच्छा बेहतर करें, तो आई फील दैट इज़ अ वेरी वेरी मोर स्ट्रॉन्गर मैसेज दैन अरे आपको उससे अच्छा करना है या किसी और से बेहतर करना है। फील इनकरेजमेंट इन द राइट वे, इन द राइट फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम वेरी प्राउड एज वी ऑल आर ऑफ साक्षी मलिक, जिन्होंने इतना इतना बड़ा काम किया है हमारे देश के लिए। मैं अपने हिसाब से हिंदी फिल्मों में काम कर रही हूँ, अच्छा लगन से कर रही हूँ, मेहनत से कर रही हूँ। एंड आई होप कि ये मुझे आगे और दूर तक ले जाए। एक सेकंड, आप कुछ बोलना चाहेंगे अभी? बिल्कुल, कंपेयर क्यों कर रहे हो? वो अपने फील्ड में कितनी अच्छी है और मैं मेरी फील्ड में अच्छी हूँ, तो कंपैरिजन तो बिल्कुल गलत है। सब अपनी फील्ड में अपने मन से बेस्ट। आई एम सॉरी, ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ख़राब सवाल भी है, और मैं बताती हूँ क्यों। बहुत ही अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि ये जो कैंपेन के लिए हम सब यहाँ खड़े हैं, आप उसी कैंपेन के बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और हमें यही ऐसे सवाल पूछना छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप लड़कियों को जो एक साथ खड़ी हैं एक इतने अच्छे कॉज के लिए, इतने अच्छे कैंपेन के लिए, सारे प्रेस मीडिया के सामने, और हम बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप ऐसे सवाल अगर पूछेंगे हमें कि पर आप इससे ज़्यादा बेहतर हो तो हमें दिखाइए ना, इसका मतलब है ही नहीं। इस स्टेज पर, इस प्लेटफॉर्म पर इस रहना ही नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? रहने देते वरना बानी के मसल्स वापस नो निकल नो, आएंगे। आई एम फ्लेक्सिंग माई हार्ट राइट नाउ। मेरे हार्ट के मसल्स फ्लेक्स हो रहे हैं। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज इट्स एक्चुअली प्राइम एग्जांपल ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद एवरी थॉट प्रोसेस दैट वी हैव इन दिस कंट्री। उन्होंने दे दिया आंसर। थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? Sonakshi ma'am, how important was it for you to make a movie, women-centric movie, to fit in for the phrase like a girl? Honestly, that was not my intention. When I signed the film, I did not make the movie. There were people who made the movie and who thought I would fit the character. But for me, what really caught my attention was that when he came to me and he explained to the character to me, he said that, you know what, usually we think that only girls who are tomboyish and who behave like boys can fight, and only our heroes are fighting on screen. But Murugadoss sir told me that, you know what, no, she's a girl who is proud of being a girl. She dresses like a girl. She wears accessories like a girl, she behaves like a girl, but she knows how to fight and she fights like a girl. So that is something that really, really caught my attention, and I said, you know what, other girls should watch this and be inspired. And honestly, till today, everybody who's watched the film, like I'm still receiving compliments about the action, about how families are enrolling their children, their girls, into self-defense classes, which I feel is an achievement in itself. Today, when a father comes up to me and says that I've enrolled my daughter in karate class because I saw your film, that's a fantastic thing to hear. So that was my reason behind doing the film, that she can be a girl, be proud of being a girl, but still fight like a girl. मेरा प्रश्न साक्षी से है। साक्षी, आपके लिए कि जब आप मतलब पहले अभी आप जीत के आई हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और जब आप खेल रही थी तो क्या कभी आपने इस तरीके की जो आपकी विन है, मतलब कि जीत है, इसको आपने सोचा था, या फिर अभी आप कैसा महसूस करती हैं, और आगे आपकी जो लड़कियां हैं यंगस्टर, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैंने सोचा था, मैं 12 साल से रेसलिंग कर रही हूँ और मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक में मेडल लाऊं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मेडल के बाद इतना सब मिलेगा। बहुत बहुत स्पेशल फील करवा रहे हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है। अब अकेली गई थी, पूरा इंडिया जानता है, बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। साक्षी, आपको स्पोर्ट्स के अलावा क्या फिल्में देखने का शौक़ है, और अगर है तो क्या आपने सोनाक्षी जी की अकीरा देखी है? नहीं, क्योंकि अभी फंक्शंस में बिजी हूँ, लेकिन टाइम निकाल के मैं ज़रूर देखने जाऊँगी। देखना और मुझे फ़ोन करके बताना कैसा लगा। ओके, सोनाक्षी, मेरा सवाल आपसे, थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी, बायोपिक प्रियंका ने की थी, मैरी कॉम के जीवन पे आधारित थी। साक्षी की जितनी
जितनी मशहूर वो हुई हैं, जिन्होंने भारत को गौरव दिलाया है ओलंपिक्स में, क्या आपको अगर मौका दिया जाए, गिवन अ चॉइस, यू वुड लाइक टू डू अ बायोपिक ऑन साक्षी मलिक लाइफ? ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। अब तो साक्षी ने भी बोल दिया कि आप बड़े पावरफुल हो, आप डांस भी बहुत अच्छा कर लेते डांस भी अच्छा कर लेती हूँ। देखो तो ऑलरेडी आज थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होगी, तो अगर साक्षी पे मूवी बने तो मैं जरूर प्ले करना चाहूंगी उसका कैरेक्टर। यू अप्रूव? हाँ अप्रूव। चलो इनको भी मंजूर है, हो गया। सोनाक्षी मेरा आंटी आपको मंजूर है? चलो साक्षी की मम्मी ने भी हाँ कर दिया। साक्षी सोनाक्षी मेरा सवाल आपसे, आपके राइट में, आपके राइट। जी जी जी। बॉलीवुड में जेंडर बायसनेस है, हम जानते हैं, फीस को लेकर के और सारी चीज़ों को लेके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखती हैं, लाइक अ गर्ल, लोग अभी भी जेंडर बायसनेस है फीस को लेके बॉलीवुड में? बट सिर्फ मेरी इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में होती है। आप या तो आपके जर्नलिज्म में हो, या तो कोई बिजनेस में हो, या तो स्पोर्ट्स में हो, अभी तक है। जो विच इज़ वाई हम आज यहाँ पर आए हैं इस कैंपेन के लिए, ये बताने कि बचपन से ही जब लड़कियाँ बड़ी होती है तो उन्हें कभी ये महसूस नहीं कराना चाहिए कि वो किसी से कम है, ताकि आगे जाकर उन्हें प्रॉब्लम्स ना हो ये जेंडर बायस की। आई थिंक इक्वालिटी इन टुडेज डे एंड एज, जेंडर इक्वालिटी इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। और या सो आई फील क्योंकि आज औरतें एक पोजीशन में हैं, अपनी आवाज़ उठा रही हैं, आगे आ रही है, बढ़ रही हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग बट इन डूइंग सो वेल इन द फील्ड दैट दे आर डूइंग। इसकी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रही है और एक बदलाव भी आ रहा है, बट हम बहुत दूर है जब वो एक इक्वल लेवल पर आ जाए, बट कोशिश चल रही है और जारी रहेगी। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बराबर का मैच रहता है, चाहे पैरा ओलंपिक्स हो चाहे नॉर्मल ओलंपिक्स हो। अभी मैं लेटेस्ट दीपा मलिक जी से मिली हूँ, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। बल्कि मुझे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। और जबकि वो इंडिया के लिए सिल्वर लाए हैं और वो इस स्टेज से लाई हैं, तो बहुत मतलब बराबर का लेवल देना चाहिए। और गवर्नमेंट भी उनके लिए बहुत कर रहे हैं। अभी मैंने सुना है कि मुझसे भी ज़्यादा उनका सम्मान हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।